everyone. Hello. Okay. Very good morning. Sorry for being late. So today we will just do a little bit recap from the very beginning. इतना नॉर्मल बेसिक इंग्लिश समझ में आता है ना? नहीं आता? कि हिंदी में बोलूं? ओके. टुडे हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे स्टार्टिंग से, बेसिक से, स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्फाबेट्स. इंग्लिश में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए? ग्रामर, राइट? ग्रामर. अब जब इंग्लिश वर्ड सुनते हो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? जब आप इंग्लिश बोलना पढ़ना स्टार्ट किए थे, सबसे पहले आपने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? अल्फाबेट्स, ABCD, A to Z. How many alphabets are there? 27? Somebody told 27? Okay, 26 alphabets are there. How many vowels are there? 5. 6. अच्छा. A, E, I, O, U. मैं भी 6 लिख रही हूँ. 5 vowels. Okay. अब apart from vowels like B, J, K, M, N, P, Z, what are these called? Consonants. A, E, I, O, U are vowels. Vowels का use कहाँ पे होता है? Any idea? Where do we use this? और how do we use the vowels? Vowels का use कैसे करते हैं? कहीं पे भी if any word that starts from a vowel, like let us take apple, what do we put in front of it? Let us come to the alphabets. A, B, C, D, E, F, G and so on. Now, if we take one alphabet, for example, E. E is one alphabet. E is one alphabet. It is not a word. It is an alphabet or letter. Okay? It is not a word. It is an alphabet. You will never say this is a word. That is wrong. Let us say E and let us take one word N and P. Sorry, one alphabet. Does this make any sense? कोई सेंस बन रहा है इसका? कुछ भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? But if we arrange this like this, PEN, अब कुछ फॉर्म हो रहा है? एक वर्ड बन रहा है. क्या बन रहा है? एक वर्ड बन रहा है. That is pen. ठीक है? अब let us take some group of words. This, ठीक है? ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. पेन, दिस इज अ. इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड. ये अल्फाबेट्स तो नहीं है एक एक करके, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. अब ये कुछ सेंस बन रहा है पढ़ के. पेन, दिस इज. अभी आप लोग को इजी लग रहा हो क्योंकि मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि चलो दिस इज अ पेन है, ये ऐसे लिखा हुआ है. लेकिन ऐसे नॉर्मली कोई देखेगा तो कोई सेंस बन रहा है इसका? डज इट मेक एनी सेंस? नो. बट इफ वी अरेंज दिस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर मीन्स दिस इज अ पेन, full stop. Does this make any sense now? अभी ये बन रहा है एक सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं? What do we call group of words? Sentence. Group of words that make complete sense is called sentence. So basic alphabets is clear, vowel and consonant is clear. We will start with the sentence. What is sentence? A sentence is a group of word. A sentence is a group of words that makes complete sense. का मतलब क्या है? एक मीनिंग बन के आ रही हो. ठीक है? Example. Can you give me example of a sentence? Any sentence, proper sentence. That is a water bottle. Okay? That is a sentence. That is a water bottle or this is a water bottle. Anybody? Okay, this is a car. अब now try with a question where you are asking something. कोई सवाल पूछ रहे हो. Interrogative question. Interrogative sentence. What is your name? Question mark. यहाँ पे क्या हो रहा है? सवाल पूछा जा रहा है. ठीक है? This is called interrogative sentence. Okay, you can write this if you want to.
Types of sentences. How many types of sentences are there? Usually there are 5 types of sentences, but today we will see 4 types. क्योंकि जो imperative and what happened? Any doubt? Any problem? Okay. First type of sentence is assertive. What happened, Yuvraj? Assertive sentence. Or assertive sentence is also called declarative sentence. Assertive sentence का first type of sentence that is assertive sentence. और assertive sentence का दूसरा नेम क्या है? Declarative sentence. Declarative sentence भी लिखा हुआ आता है, assertive sentence भी लिखा हुआ आता है. Now coming to what is assertive sentence. Assertive sentences वो होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट्स होता है, जहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स दिया जाता है या कोई असर्शन मेक किया जाता है. देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, कोई कमांड नहीं होता. नॉर्मल सेंटेंसेस होता है जहाँ पे एक स्टेटमेंट बन रहा हो. लाइक एक नॉर्मल सेंटेंस की एग्जांपल है. और समटाइम्स डू यू नो व्हाट इज यूनिवर्सल फैक्ट? यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रुथ्स क्या होता है पता है? कभी सुने हो ये वर्ड यूनिवर्सल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ? दैट इज नॉट ईजी टू चेंज. यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड. फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन. ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. दिस कम्स अंडर दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है. और एक यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रुथ क्या है? The sun rises in the east and sets in the west. ठीक है? Which is not changed. That is called universal facts or universal truths. Apart from that, normal statements, that assertions, कोई भी आप assertion make कर रहे हो, like जिसमें कमांड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, या फिर कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलता है? अच्छा, क्वेश्चन विल कम टू दैट पार्ट. नॉर्मल सेंटेंस लाइक दिस इज अ पेन. ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड assertive or declarative sentence. Are you able to understand? Okay. This type of sentence is called assertive or declarative sentence. दूसरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं. द सन राइजेस. एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके. ऑल्सो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई. आपको पता ही होगा कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड एंड्स विद व्हाट? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ऑलवेज कीप इन माइंड एनी सेंटेंस, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर. बीच में कैपिटल लेटर आता है कब? आप देखते होगे जब किसी का नेम हो, कोई भी पर्सन का नेम, स्पेशल पर्सन लाइक फ्रीडम फाइटर्स हो गए, कोई साइंटिस्ट हो गए, मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और आपका रिवर्स, ये सब अगर सेंटेंस के बीच में भी होता है, वी राइट इट इन कैपिटल. ऐसा नहीं कि यू विल राइट ऑल द लेटर, जस्ट द बिगिनिंग. लाइक इफ इट इज गंगा, गंगा. द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया. सो तो जो गंगा का जी होगा यू विल राइट इन कैपिटल, even if it is in the middle of the sentence. If it is not in the starting, अगर starting में नहीं है, middle में, तो भी आप कैपिटल में लिखोगे, बिकॉज इन सब चीज़ों को हम कैपिटल में मेंशन करते हैं. ठीक है, अब वापस आ जाते हैं. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है पता चल गया? कोई डाउट है? जहाँ पे नॉर्मल स्टेटमेंट दिया जाता हो, वेयर वी गिव नॉर्मल स्टेटमेंट्स, ऐसे कोई भी असर्शन कुछ भी मेक करते हैं, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रुथ होता है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. और असर्टिव सेंटेंस के एंड में आता है फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज, आपको मेरी आवाज़ ऐसे नहीं आ रही? अच्छा,
माइक तो यहाँ से उसके लिए है कनेक्टेड, यहाँ पे माइक नहीं है। एम आई आप लोग को नहीं सुनाई दे रही? एम आई बीइंग टू लो? अगर नहीं सुनाई दे रही तो आगे आ जाइएगा। ओके, आई विल स्पीक लिटिल बिट लाउडर। व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वर्ड सुन के कुछ आता है माइंड में? व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? हाँ, क्वेश्चन। एंड व्हाट आर द क्वेश्चन वर्ड्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द क्वेश्चन वर्ड्स? क्वेश्चन वर्ड्स यानी कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? जहाँ पे भी सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे सेंटेंस किस वर्ड से स्टार्ट होता है? दोज आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। वेयर क्वेश्चन इज बीइंग, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जवाब की बात नहीं हो रही, सिर्फ सवाल की बात हो रही है। व्हाट इज सो फनी बैक देयर? एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन करो, यू कोई भी क्वेश्चन पूछो, आस्क मी एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड्स कभी भी नोटिस करना, व्हाट से तो होता ही है, ये तो सबको पता है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट? हु, वेयर, विच, whom, इन सब क्वेश्चन वर्ड्स को WH बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादातर यू विल सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम W एंड दिस वन हाउ, ये H से होता है। these are called WH वर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एक दो वर्ड्स और, एक दो नहीं 3-4 है जिससे क्वेश्चन बनता है। यू विल सी लाइक डिड यू ईट, है ना, डू से बनता है, इस से स्टार्ट होता है, कैन से भी होता है, एंड देयर आर सम मोर, आर एंड एम ऐसे, लेकिन इनका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। मेनली वी सी दीज वर्ड्स, ओके, दैट्स वाई इनका अलग से नेम है WH वर्ड्स। उनको भी यूज करते हैं बट नॉट एज मच एज वी यूज दिस। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, चलो, वेयर डू यू लिव, व्हाट से बन गया व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, विच क्लास डू यू स्टडी इन, whom do you know, how are you, ऐसे पूछते हैं। why are you here, did you eat, do you know my name, is this your chair, can you do this for me, are से बनाओ, are you, okay, am से am I the only one, so you can write the examples for interrogative question. One thing to keep in mind is every interrogative sentence, like every sentence that starts with capital letter but it ends as like assertive, imperative, this sentence will end with full stop, but an interrogative sentence will always end with a question mark. कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड है या फिर उनमें से कोई है, तो यू कैन मेक आउट कि यहाँ पे चलो इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज, एनी डाउट इन दिस? कैन यू ऑल हियर मी ऑनलाइन, whoever is there? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछे जाते हैं, असर्टिव में स्टेटमेंट दिया जाता है, एनी स्टेटमेंट, और यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स रहते हैं। एनी डाउट ऑनलाइन? व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? वो एक्सप्रेसेस व्हाट? कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड एंड रिक्वेस्ट, कमांड और रिक्वेस्ट से क्या समझ में आता है? कैसे पता चलेगा यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट? हाउ विल यू नो दैट समवन इज making your request? when he or she will use the word please, है ना, please give me a glass of water. imperative sentence ends with a full stop, इसका कोई लास्ट का साइन नहीं है, किससे आप पता लगा लोगे कि ये imperative sentence है? लाइक जैसे कि इंट्रोगेटिव में होता है क्वेश्चन मार्क का और एक्सक्लेमेटरी में होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। there is no such thing for imperative or assertive sentence, and don't get confusing imperative and assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? स्टेटमेंट्स होते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स और ट्रूथ्स होते हैं। इंपेरेटिव में क्या होता है? कमांड्स मेक किया जाता है, रिक्वेस्ट मेक किया जाता है। हाउ विल यू नो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है? वहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है। हाउ विल यू नो कि रिक्वेस्ट है? द यूज ऑफ वर्ड प्लीज होगा, दिखेगा। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो थैंक यू दिखेगा। कमांड, सेंटेंस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि इट इज़ अ कमांड। इफ आई एम सेइंग शट अप, लग रहा है कि ये कमांड है ना? क्लोज द डोर, ओके, क्लोज द डोर और शट द डोर इज अ कमांड, प्लीज क्लोज द डोर इज अ रिक्वेस्ट। सो बोथ विल कम इन इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। एग्जाम्पल, शट द डोर,
एंड प्लीज शट द डोर. ये कमांड हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया. हाउ विल यू नो इट इज़ अ रिक्वेस्ट? यूज ऑफ वर्ड प्लीज, इससे पता चल रहा है इट इज़ अ रिक्वेस्ट. कैन एनी वन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस का कोई भी कमांड और रिक्वेस्ट. ट्राई. ओके, नाउ कमांड. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. करेक्ट. बी क्वाइट, इट इज़ अ कमांड. यूजुअली टीचर्स से बी क्वाइट, इट इज़ अ कमांड. इज इट क्लियर? इम्परेटिव क्लियर था? इट वॉज ईजी, नॉट सो टफ. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हो गया? सी, अच्छा सॉरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses, exclamatory sentences expresses strong feeling. strong feeling को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? और that feeling can be feeling of happiness और feeling of sadness. बहुत sudden feeling जो होता है, sudden strong feeling, that feeling can be feeling of happiness or sadness, both. दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी व्हेन. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मैच देखने गए हो क्रिकेट का, कुछ भी क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग. तो व्हेन द जो आपका जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, व्हेन दैट टीम विन्स द मैच, व्हाट डू यू से? ये हुर्रे, है ना? तो हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वन द मैच. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, ठीक है. कोई सैड है, वी यूज दिस वर्ड अलास. ही इज डेड, दुख मना रहा है, मर गया वो. ही इज डेड, समवन इज डेड, तो कोई उसका दुख मना रहा है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, ऐसे नॉर्मल बिल्कुल हिट करती है, कहते हैं ना हिट करती है ऐसे. ये वर्ड आपने सुना होगा, ब्रावो. दिस एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट. तो ऐसे वर्ड्स होंगे. कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस भी लिखा होगा, वॉट अ शेम. वॉट अ शेम, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोल रहे हो, वॉट अ शेम, और क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. तो आपको समझ जाना है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसमें आप इजीली यू कैन मेक आउट दैट दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसका कोई इतना ये नहीं है, बट यू शुड ऑल्सो नो दिस वर्ड्स की यूज़ ऑफ हुर्रे, अलास, ब्रावो, ये सब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में. ओके, फर्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस रीड करो और टेल मी विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट. ट्राई. ओके, आप असर्टिव बोल रहे हो. आप क्या बोल रहे हो? यस यस, यू असर्टिव. आप असर्टिव. व्हाट डू यू पीपल से? असर्टिव. व्हाट डू यू से? असर्टिव और डिक्लेरेटिव. Next is, it is very clear, it is interrogative, it is a question mark here. Next one, assertive. Okay, tell. आप बताओ. Assertive. आप, can you try? You people? Okay, it is assertive sentence. This is interrogative. This is imperative sentence. And this one, he is writing since morning, सुबह से लिख रहा है. Assertive, very good. अब तो क्लियर है? ऑनलाइन everyone is clear with this topic? Any doubt? Everybody is sleeping? Okay, before starting for our next chapter, not next topic. Okay. Can you give me, hello, what is your name? Karan. Okay, Gagan. Give one example of imperative sentence. Imperative sentence.
हाँ, imperative sentence includes both command as well as request. Okay. Can you give one example? Give me your chocolate. No. अच्छा, डांट के मांग रहे हो? Give me your chocolate. ठीक है फिर. Can you give me an example of interrogative sentence? Yes. That is not the example I am asking for. Interrogative. Interrogative किसको बोलते पता है? Interrogative sentence किसको बोलते हैं पता है? किसको बोलते हैं? Okay, good. Hapur. What? I can't pronounce your name. It is C-A-C-H. What is your name? अगर मैं गलत बोल दूँगी तो फिर आप माइंड कर लोगे. बताओ. First tell me what is interrogative sentence. हाँ तो क्वेश्चन करो कोई भी. Can you give some example? How about the grapes? Very good. Wow. Sorry. Wow. Exclamation mark. What a beautiful view. अरे इसमें तो ठीक है. This is example of exclamatory sentence. Wow word भी आता है. ठीक है. जो भी चीज़ आप थोड़ा सरप्राइज होके बोल रहे हो, सडन रिएक्शन आ रहा है, चौंक रहे हो, दैट इज कॉल्ड exclamatory expressions. And can you give some example from assertive? It is the easiest one. Assertive sentence. I have apart from having pen. Apart from having pen, give some other example. Pen, everybody is having pen. आपको तो नहीं कुछ समझ में आया होगा. Ever heard of this? कभी सुना है? सुना ही होगा. Parts of speech सुने तो होगे ना. How many types of parts of speech are there? Sorry, how many parts of speech are there? 8. You said 8. Okay. आप लोग बताओ. I will keep writing. Say. 8 part of speech. First one is noun, pronoun, then adjective. Next क्या होगा? Article. No, article is not a part of speech. Article is not part of speech. 4, 5. This will be 5. यहाँ से आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से तो न्यू टॉपिक है ना. पार्ट्स ऑफ स्पीच सुने हो कभी? सुने होगे ग्रामर में. जब इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद दीज चैप्टर्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब. फिर आता है प्रीपोजिशन. आज वी विल नॉट डू इन डिटेल व्हाट इज प्रीपोजिशन और व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन. वी आर नॉट गोइंग टू डू इट इन डिटेल. वी विल जस्ट गिव अ क्विक रिव्यू, शॉर्ट, कि आपको रिकॉल हो जाए. प्रीपोजिशन. व्हाट कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन? कंजंक्शन. सुना है कभी? एवर हर्ड ऑफ दिस? कंजंक्शन, प्रीपोजिशन. लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. नाउन में क्या होता है? लाइक आई टोल्ड, अभी मैं टाइप्स वगैरह पे नहीं जाऊंगी. जस्ट सिंपल डेफिनेशंस ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट इज नाउन? हाँ, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. Everything is noun around us. This is noun, this is noun, this is noun, this is noun. I am noun, you are noun. Animal or things are called noun. What is pronoun? Words that are used in place of noun. वो words जो noun के जगह पे यूज़ होते हैं. वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब उसके बदले, उसके जगह पे यूज़ होना. से फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम रिया है, ठीक है. अ गर्ल नेम रिया. आई एम सेइंग रिया इज़ अ गुड गर्ल. रिया गेट्स अप अर्ली. रिया कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम. रिया ईट्स द फूड ऑन टाइम. रिया लिसन्स टू हर मदर. बार बार मैं रिया 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 करूँगी तो इरिटेटिंग लगता है थोड़ा सा. बार बार रिया रिया डू दिस, रिया डज दिस, रिया डज दैट. ठीक है. तो रिया के प्लेस में व्हाट वी विल यूज़? पहले बार तो फर्स्ट टाइम वी हैव टू यूज़ द नेम रिया. पता चल जाएगा कि हाँ इसका नाम रिया. आफ्टर दैट व्हाट वर्ड वी विल यूज़?
she. Riya is a good girl. She wakes up at time. She goes to the school at time. So these words are called pronoun which we use in place of noun. अब रिया क्या थी? रिया तो noun थी ना. रिया is a name of a person. A name of a person क्या होता है? Noun. Clear है? रिया तो एक noun है. किसी भी person का name या animal का name या thing का name is called noun. रिया is a name of a person, so it is a noun. And अभी pronoun में क्या हो रहा है? Noun के pronoun में हम लोग क्या करते हैं? Replace करते हैं noun को with he, she, it और he, she, it, we, they, you, and further it is divided into first person, second person, third person, है ना? We will do that later. Verb क्या होता है? Action words. Action words. कोई एक action word बताओ. Cycling. What I am doing. Writing. What you are doing. Studying. These are called action words. Eat. Read. Write. etc. What is adverb? What is adverb? Adverb describes adverb describes the verb. Verb को describe करता है. ठीक है. बाकी when we will study the types of adverb, उसमें आता है कि adverb of time, adverb of place, adverb of quality, quantity. सुना होगा. कितना है, क्या है, कैसा है. Adverb जैसे कि he is a honest man. कैसा है? Honest है. इस तरह से वो verb को define करता है. ठीक है. These two are interconnected. Adjective. Adjective क्या होता है? Describing word. ठीक है. Good, bad, large. But he is a honest man, honest to adjective ना. Slowly आ सकता है. Slowly. Adverb में. Slowly adverb में. Yes. Slowly आएगा adverb में. Honest is defining a quality of a person. लेकिन जब adverb और adjective के पढ़ेंगे हम लोग parts कि what types of adjectives are there. Quality आता है, quantity आता है, number आता है, demonstrative आता है, interrogative आता है. Same आपको adverb में भी देखने मिलेगा. ठीक है. Adverb में mainly verb को ही define करते हैं. अगर eat है तो he is eating. These are interconnected. Verb और adverb जो interconnected होता है. What is he doing? Eating. What is the verb here? Eat. ठीक है. Preposition. 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 Pre मतलब क्या होता है? पहले. ठीक है. Position. Placed before noun और pronoun. Preposition placed before noun और pronoun और इनका relation बताता है. Shows relation. ठीक है. कैसा रिलेशन? कि कोई भी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे है, ऊपर है, नीचे. इफ दिस लैपटॉप इज ऑन द टेबल. कहाँ है लैपटॉप? ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर है. दिस लैपटॉप इज अंडर द टेबल. कहाँ है? टेबल के अंडर. अंडर मतलब होता है इफ दिट इज समथिंग इज केप्ट अंडर नीथ मतलब नीचे. एक मान लो कोई सामान है उसके नीचे कुछ है तो दैट इज कॉल्ड अंडर. ऊपर है तो ऑन. इनसाइड है वो तो इन. इनसाइड मतलब अंदर. वैसे अंदर नहीं, नीचे नहीं. नीचे इज डिफरेंट. अंदर होना इज डिफरेंट. देर इज अ वाटर इन द बॉटल. बॉटल के अंदर पानी है. ठीक है. देन वी यूज द टर्म इन. तो प्रीपोजिशन में क्या आ जाता है? इनटू, ऑन, अप, अबव एंड देर आर मेनी मोर. बहुत सारे हैं. बिसाइड. बिसाइड मतलब बगल में. ठीक है. देर इज अ चेयर बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में चेयर है. बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ के बीच में. अमंग. अमंग बिटवीन यूज होता है दो लोगों के लिए या दो सामान के लिए. व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. इफ आई एम सेइंग दिस इज अ स्वीट. मान लो एक चॉकलेट है. आई विल टेल हर एंड हर ओके टेक दिस चॉकलेट एंड आप लोग आपस में बांट लो. डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन बोथ ऑफ यू. अपने आपस में बांट लो. देन वी यूज द टर्म बिटवीन. लेकिन इफ आई एम गिविंग यू इफ आई एम गिविंग हर हाउ मेनी पीपल आर देयर 1 2 3 4. For example, there are 10 students in class and I am giving her 10 chocolates and I will say the word distribute the chocolates among the students. Among word आएगा. एक से ज़्यादा के बीच में जब दो से ज़्यादा के बीच में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
वी विल यूज़ द वर्ड अमंग, नॉट बिटवीन. बिटवीन दो लोगों के लिए, जब दो लोगों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा हो या चेंज हो रहा हो तो वी यूज़ द वर्ड बिटवीन. बट जब दो से ज़्यादा हो वी विल यूज़ द वर्ड अमंग. अमंग. और बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे. ठीक है. अक्रॉस का मतलब क्या होता है? हाँ, आर पार. मेरे अक्रॉस में क्या है? चेयर्स है. ओके, वहाँ लास्ट में. देन कम्स अबव का मतलब ऊपर. डाउन, अप, ये तो यू पीपल नो. कंजंक्शंस. व्हाट आर कंजंक्शंस? ज्वाइनिंग वर्ड्स. व्हाट आर ज्वाइनिंग वर्ड्स? इस ज्वाइनिंग वर्ड इस तो वर्ब है ना. एंड और because, but, either or, neither nor. When we will do types of conjunctions, then we will see what is either or, neither nor, which type of conjunctions are these. Joining words and or because. I have had my lunch. मैंने अपना lunch कर लिया है. If I say I have had my lunch, I will sleep now. ये अलग अलग स्टेटमेंट है. फुल स्टॉप है. आफ्टर दैट आई एम सेइंग आई विल स्लीप नाउ. अगर इसको ज्वाइन करना है सेंटेंस को, हाउ विल यू ज्वाइन? आई हैव हैड माई लंच एंड नाउ आई विल स्लीप. एंड से जुड़ा. ओके. आई विल नॉट गो देयर. ठीक है. आई विल नॉट गो देयर. समवेयर, कहीं जाने की बात हो रही. आई विल नॉट गो देयर. फुल स्टॉप. एक सेंटेंस है. देयर इज द रूम इज़ वेरी हॉट. ठीक है. एक स्टेटमेंट है आई विल नॉट गो देयर. दूसरा स्टेटमेंट है उसी से कनेक्ट करना है. द रूम इज़ वेरी हॉट. हाउ विल यू कनेक्ट? हाँ, आई विल नॉट गो देयर बिकॉज द रूम इज़ वेरी हॉट. ठीक है. दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट. आई लाइक टी बट आई लाइक कॉफ़ी टू. ठीक है. मुझे टी तो पसंद है बट मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, मुझे टी भी पसंद है. इंटरजेक्शन मेनली जैसे मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी पढ़ाया, इंटरजेक्शंस में भी ऐसे ही होता है. एक्सप्रेसेस फीलिंग्स. वही सारे वर्ड्स आते हैं. हुर्रे, अलास, वाओ. फीलिंग्स कैन बी एनी ऑफ एनी काइंड. बीट्स हैप्पीनेस के बारे हो या सैडनेस के बारे हो. कभी कभी व्हेन वी से व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, ये वर्ड यूज़ करते हैं ना. व्हाट अ वेस्ट, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है फिर भी वी से. बात करते करते इसका कोई मीनिंग नहीं है. हु ही का कोई मीनिंग नहीं होता है बट वी से दीज वर्ड्स. सो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. अब ना, आई वोंट गो देयर. ना जैसा कोई वर्ड है इंग्लिश में, ना जैसा कोई वर्ड तो है नहीं. बट व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, बता रहे हो ना एकदम मूड में नहीं हो आप जाने के, आई डोंट वांट टू गो देयर, वी यूज़ दिस वर्ड ना. ठीक है. आपको कुछ समझ में आ रहा है? सो एनी डाउट यहाँ तक? एनीथिंग? ओके. नाउ वी विल मेक सेंटेंसेस. ओके. आप स्टार्ट करोगे गगन. प्रेपोजिशन आना चाहिए सेंटेंस में. यू हैव टू मेक वन सेंटेंस विथ प्रेपोजिशन. एवरीथिंग इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉरी, डिजिटल बोर्ड, नॉट ब्लैक बोर्ड. सो यू कैन टेक हेल्प ऑल्सो. सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. सेंटेंसेस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर. सो यू विल टेल मी द सेंटेंसेस एंड आई विल राइट एज एग्जाम्पल और यू पीपल कैन नोट डाउन. एकदम ये हो गया है क्या? खिचड़ी बन गई? ओके, यू हैव फॉरगॉट योर स्पेक्स. कैन यू ट्राई? अच्छा, लिखना छोड़ दो तो फिर इसका मतलब यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. सो प्रीपोजिशन आए, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बनाओ. व्हाट आर द प्रीपोजिशन वर्ड्स इन, ऑन, up, above, across, beside, behind, between, among. Use this word in your sentence and frame a sentence. Anyone can try online. Can you make one sentence? You are smiling. Yes. Say. Okay. In आ रहा है उसमें. Can you make? Yes.
I know I can add slides. No, now I don't want to write anything. You are asking me to add another slide. Achha, you are telling me the sentence. Okay. I thought she is telling me to add one more slide and write some sentence. You can add, what is the preposition here? Below. Okay. Can you frame one sentence? Huh? The cat is under the table. ठीक है, वर्ब नहीं भूलना है. अब वर्ब की बात हो गई है तो एक चीज़. Okay, let us first do this. Yes, sir. Yes. Can you make one sentence with conjunctions? Conjunction का use, and what are conjunction? And, but, because, so, either, or, neither, nor. Can anyone make one sentence with conjunction? Online, anyone? You will get only 1 minute, not even 1 minute, 30 seconds to think. वहाँ पे 30 seconds ही मिलता है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए. बोलो. Yes. It was what? It was good, but I didn't like it. Okay. Can you make one sentence with adjective? Adjective. Use some quality. What? Sorry? There is huge. Huge is the adjective. Okay. Noun, it is easy. Pronoun. Can you try some sentence with pronoun? Start the sentence with he, she, it is easy. Okay. आप सेंटेंस वर्ब आना चाहिए. वर्ब तो सब में आता है, बनाओ कोई भी सेंटेंस. Any sentence, verb should be there. Proper sentence. And you will tell me what is the verb in that sentence. Can I erase this? ऐसा कोई option नहीं है from which I can erase it totally by one click. You have not told me a sentence yet. What is the verb here? Eating. Okay. ऑमलेट खाने का मन हो रहा है. एक प्रॉपर सेंटेंस में है, एक प्रॉपर सेंटेंस में यूजुअली क्या होता है? सब्जेक्ट. अ प्रॉपर सेंटेंस इज दैट विच मेक्स सेंस. ठीक है, आधा अधूरा नहीं हो, प्रॉपर सेंस बन रहा हो. इट शुड एंड विद अ कैपिटल लेटर, सॉरी, बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? दिस इज अ सेंटेंस. व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? इज वर्ब नहीं होता है. राइटिंग, चल राइटिंग भी वर्ब है. राइट, राइटिंग इज वर्ब नहीं है. देयर कैन बी मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस. ओके, एक से ज़्यादा वर्ब एक सेंटेंस में हो सकता है. अगर मान लो सेंटेंस इससे भी बड़ा है, कंजंक्शन लगा के मैंने एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, तो एक और वर्ब नहीं होगा उसमें? होगा. इज इज ऑल्सो अ वर्ब. ओके, ही क्या हो जाता है? ही इज सब्जेक्ट. जो काम कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट. लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ऐसे ही होते हैं. पहला होता है सब्जेक्ट, एक होता है आपका वर्ब, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एंड एक होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? यूजुअली फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कोई काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. इफ आई राइट शी विल बी सब्जेक्ट, वर्ब, लेटर विल बी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये 3 पार्ट है. दिस आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द बिगिनिंग. तो अभी क्लियर है. आप एक सेंटेंस में यू कैन डिस्टिंग्विश मतलब आप फ़र्क पहचान पाओगे कि क्या कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है. कैन यू मेक दैट थिंग क्लियर? इट इज़ क्लियर? इट इज़ क्लियर? विल यू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट? हो जाएगा? चलो ठीक है.